Today I am going to start a new chapter in maths. Okay, chapter 12 algebra. Introduction. So far we have studied about two branches of mathematics, arithmetic And geometry. So children, we have already studied two branches of mathematics. What they are? Arithmetic and geometry. Arithmetic means deals with numbers, operations on numbers, operations on numbers, operations on numbers, properties of numbers, and the application of this knowledge in solving some real life So children, problems. arithmetic deals with numbers. Okay, operation on numbers means addition of numbers, subtraction of numbers, multiplication of numbers, and division of numbers. Properties of numbers, and also studied about the application of this knowledge in solving some real life problem. Okay, so this is called the arithmetic. Geometry deals with figures, shapes, and their Underline properties. geometry का मतलब क्या होता है? Geometry deals with figures, shapes, and their properties. Figures like line segment, angles, triangle, circle, okay, quadrilateral. So in geometry deals with figure and what? Shapes. Okay, and arithmetic deals with numbers, operation on numbers, properties of numbers, and the applications. Okay. In this chapter, we shall study another branch of mathematics named So algebra. in this chapter we will study under branch of mathematics. Okay, name algebra. इसमें हम अब एक न्यू ब्रांच के बारे में, क्योंकि क्लास 5 तक तो आपने केवल अरिथमेटिक और ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अब हम मैथ्स में एक न्यू ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड Algebra. In algebra, we use letters for numbers by अंडरलाइन इन algebra we use letters for numbers. इसमें हम numbers के लिए letters का यूज करेंगे. ओके, in algebra we use letters for numbers. By using letters, we can talk about any number and not just a particular number. Use of letters will allow us to write rules and formulas in a general way. Since letters stand for numbers, arithmetic Underline children, letters stand for numbers. Arithmetic operations can be performed on them as on numbers. Further, letters may stand for unknown quantities. Underline, letters may stand for unknown quantity. कोई भी unknown quantity है उसको यूज करने उसके लिए हम क्या करेंगे? letters का यूज करेंगे. By learning methods of determining unknown, we shall develop powerful tools for solving many problems from daily life. तो variables, variables means Variables. The word variable means something that can vary. that is change. So underline children the variable. So okay, so in algebra we will study about the variables and constant. Okay, इसमें algebra में क्या होता है? variables होते हैं, constant होते हैं. तो children variables means something that can vary. Okay, vary का मतलब क्या होता है? change. ऐसी चीज जिसकी वैल्यूज होती चेंज होती रहेगी. ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, फिर उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है. वेरिएबल्स मींस दैट कैन वेरी, इट मींस चेंज. The value of a variable is not fixed. सो वेरिएबल मींस ऐसी चीज, ऐसी वैल्यू जिसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, इट कैन बी चेंज. We shall learn the idea of variables through matchstick patterns and word problems. Matchstick patterns. Patterns can be made by using matchsticks to form letters of English alphabet such as L, T, V, C, U, F, E, etc. or geometrical shapes such as equilateral triangle. तो patterns can be patterns can be made by using matchstick to form letters of English alphabet such as L, T, U, C, U, F, E, okay, dash, etc. or geometrical shapes such as an equilateral triangle, square. So look at the figure, student. See, look at the following pattern of letter L formed by matchstick. Okay, so see children, in first one, in figure 1, देखो, this is the letter of L. Okay, देखो letter L किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है. ठीक है, यहाँ पे तो how many matchsticks we have used? Two matchsticks. Okay, so two matchsticks we use. यहाँ पे
मैच स्टिक यूज की है? Two. ओके, सपोज हमको यहाँ पे 2 मैच स्टिक से हमको 2L ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। तो we use L की फॉर्म में तो 2 ही यूज हो रहा है। एक L बनाने में कितनी मैच स्टिक यूज करेंगे? 2। अब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? यहाँ पे 2 into 1, तो ये हो गया 2। यहाँ पे कितना यूज हो रहा है? 2 मैच स्टिक, ठीक है 2। एंड हाउ मेनी मैच स्टिक्स वी हैव यूज्ड? 2। अब इसमें मैच स्टिक्स कितनी है आपकी? 4। देखो इन फिगर यूजिंग 4 मैच स्टिक, सेकंड फिगर देखो, यूजिंग 4 मैच स्टिक 2 L's आर फॉर्म, ओके, यूजिंग 4 मैच स्टिक। Now in third figure third, using 6 matchstick 3 L's are formed। और 3 L's को फॉर्म करने के लिए हमको कितनी matchstick यूज करनी पड़ेगी? 6। We use 6 matchsticks। इस तरीके से आपका तो we use 2 into 3, okay, 2 into 3। So in figure first, using 2 matchstick, okay, 1 L is formed। In second figure, using 4 matchstick, okay, using 4 matchstick 2 L's are formed। And in third figure, using 6 matchstick there is L's are formed and so on। So we prepared table 1 in 1 as under। Table 1. Number of L's formed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number of matchstick required। Number of L's formed 1, we use 2 matchstick, ठीक है, 2L we use 4 matchstick, 3 we use 6 matchstick, 4 we use 8, 5 10, 6 12 and 7 14। So we observe that the number of matchsticks required is double the number of L's formed. Number of matchsticks required equals to 2 multiplied by number of L's formed. If we write the letter N for the number of L's formed, then number of matchsticks required equals to 2 multiplied by N. It is based on 2 into N, okay। अब देखो बेटा ये जो 2 है यहाँ पे देखो, एक L बनाने के लिए 1 L बनाने के लिए 2 मैचस्टिक, एक कोई भी L है, L बनाने के लिए हमको कितनी मैचस्टिक की जरूरत हो रही है? 1 and 2, ओके, कोई भी L बनाने के लिए 2 मैचस्टिक की। तो ये वाली जो वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है डज नॉट चेंज द वैल्यू। जैसे 2 की वैल्यू 2 ही होगी, 4 की वैल्यू 4 ही होगी, ओके। तो आप यहाँ पे देखो ये 2 जो है आपका ये फिक्स है, ठीक है, ये किसी में भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने लिखा है कि ये मैचस्टिक है, 2 हमने इसमें मैचस्टिक यूज़ की है L बनाने के लिए, यहाँ पे हमने ये भी फिक्स है, ठीक है। तो जो फिक्स वैल्यू होती है, द फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग द फिक्स्ड वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। केवल जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है, ओके। देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ है 1, यहाँ पे 4 और ये 3, ये चेंज होता जा रहा है ना। यहाँ पे हमने 1 यूज़ किया है, यहाँ पे हमने कितने L यूज़ किए, यहाँ पे कितने L यूज़ किया है? 2, वहाँ पे हमने कितने L यूज़ किए? 3, ओके, सॉरी ये 2 है, 2 L, 2 2 4। तो ये वाली जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इधर भी 3 है, ओके, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल। और वेरिएबल को जब भी रिप्रेजेंट करना होता है, इसको हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे अननोन लेटर यूज कर लिया 2 into N, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, 2 इज द कांस्टेंट नंबर और N इज द वेरिएबल। अब आप किसी में भी कर सकते हो, सपोज 1 यहाँ पे 1 L है तो 2 into 2N से निकालेंगे 2 into 1, यहाँ पे N की वैल्यू हमने 1 ले ली, जैसे 2, जैसे आपके पास है ना 2 into N, if N value is 1, if N value is 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into 1, 2 into 1 is 2, ओके। यार देखो यही फॉर्मूला हमने यूज किया 2 into N। अब यहाँ पे हमने N की वैल्यू कितनी ले ली है? N कितने मैचस्टिक कितना वो L लिया है? 2, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब यहाँ पे 2 into N, तो एक हम इसमें अलजेब्रा में इस तरीके से फॉर्मूला बना लेते हैं और उसी फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 था, ये तो 2 तो फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया? N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3, ओके। तो 2 3 6, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? हमने कांस्टेंट टर्म भी यूज किए और हमने यहाँ पे वेरिएबल भी यूज किया, ठीक है। अच्छा, तो एक और एग्जांपल आप समझिए। जैसे आपके पास कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है? व्हाट इज अ रेक्टेंगल? Rectangle is a quadrilateral having 4 sides, okay. This is the length of a rectangle and this
द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, देखो बेटा अगर हमको इसका टोटल लेंथ इसको मेजर करना होगा तो हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर। सपोज ये लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर है। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दिस इज आल्सो 12 सेंटीमीटर। द ब्रेथ इज गिवन 4 सेंटीमीटर, द अदर साइड इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, तो नंबर में तो देखो हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम सबको ऐड कर देंगे 12 + 4 + 12 + 4। ओके, इनको ऐड कर देंगे, लेकिन हम अलजेब्रा में ऐसे नहीं करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो लेंथ कितने टाइम्स है तुम्हारी, लेंथ कितना है 2 टाइम्स, नहीं लेंथ क्या है आपकी 2 टाइम्स आई है ना, 2 लेंथ है, रेक्टेंगल में क्या है 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा 2l, हमने वेरिएबल यूज कर दिया l, लेंथ, l को हमने क्या छोड़ दिया लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। ठीक है, अब हमने इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू, देखो 2 कॉमन है ना यहाँ पे, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया और हमने यहाँ पे लिख दिया l + b। ओके, तो हमने एक अलजेब्रा में इस तरीके से फॉर्मूला बनाया 2 × l + b। अब देखो आप फॉर्मूला से कर सकते हो, 2 यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट इज मल्टीप्लाई। ठीक है, लेंथ कितना है आपका 12 + 4, ब्रेथ इज गिवन 4, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 और 16 2 = 32 सेंटीमीटर। इसमें भी 32 आएगा, यहाँ पे भी 32 आएगा, लेकिन हमने एक इसको लेंथ को स्पेसिफिक एक वेरिएबल का नेम दे दिया लेंथ। ठीक है, यहाँ पे लेंथ दे दिया और ब्रेथ को हमने 20 से रिप्रेजेंट कर दिया। इज इट क्लियर कैसे करके करना है? तो ये मैथ स्टिक वाला एग्जांपल और ये रेक्टेंगल समझ आ गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप देखिए, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल। ठीक है, ये सारी साइड्स इक्वल होती है। तो जैसे सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, तो दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका 2 + 2 + 2 + 2। जनरल में कितना हो जाएगा, नॉर्मली कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन हम इसको अलजेब्रा में कैसे सॉल्व करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, हमने साइड को हमने इसमें ले लिया साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितनी साइड्स है इसमें 4 × साइड। ओके, 4 × साइड। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 4 × साइड कितना हो गया 4 + 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो ये तो एक फिक्स हो गया, जैसे 2 स्क्वायर है आपके पास, यहाँ पे 2 स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो 4 तो फिक्स है आपका। ठीक है, और अदर 2 इस तरीके से चीज। ओके,